अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज़ फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर एंड हाउ टू क्रिएट फंक्शन, व्हाट द बेनिफिट्स एंड व्हाई वी यूज़ एसक्यूएल फंक्शंस। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि मेरी वीडियो का दो पार्ट्स होते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो मैं कवर करता हूँ। Function in SQL Server are similar to function in other programming languages. Functions in SQL Server contains SQL statements that perform some specific task. Function can have input parameters and must return a single value or multiple records. If your script uses the same set of SQL statements repeatedly, then this can be converted into a function in the database. SQL Server functions are useful objects in SQL Server databases. अब जो हम इसकी फर्दर डेफिनेशन देखते हैं, SQL function is a set of SQL statements that accept only input parameters, perform action and return the result. The function can return only a single value or a table. We cannot use function to insert, update, delete records in database tables. A function is considered an object. Here are some of the rules when creating functions in SQL Server. A function must have a name and a function name can never start with a special character such as $, $, and so on. Functions only work with select statements. Function can be used anywhere in SQL like average, count function, sum function, minimum function, date, and so on with select statements. These are average, count, sum, minimum, date. These are the built-in SQL function. Later on we will look into it or in upcoming videos. Functions must return a value or result. Functions only work with input parameters. Try and catch statements are not used in functions. Difference between store procedures, SPs and function. जिस तरह से आप जानते हैं कि स्टोर प्रोसीजर की वीडियोस और स्टोर प्रोसीजर का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है SP स्टोर प्रोसीजर वाली जो वीडियो उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग फर्दर उसको चाहें तो गो थ्रू या रिव्यू कर सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर्स आर प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट विच आर कंपाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. Its compiled format is saved, which executes compiled code whenever it is called. A function is compiled and executed every time whenever it is called. A function must return a value and cannot modify the data received as parameter. The function must return a value, but in a stored procedure it is optional. Even a procedure can return 0 or n values. Function can have only input parameters for it, whereas procedure can have input or output parameters. Function can be called from procedure, whereas procedure cannot be called from a function. The procedure allows select as well as insert, update, delete statement in it, whereas function allows only select statement in it. Procedures cannot be utilized in select statement, whereas function can be embedded in a select statement. Store procedure cannot be used in a SQL statement anywhere in the where having select section, whereas function can be. Function that returns tables can be treated as another row set. This can be used in joins with other tables. An exception can be handled by try-catch block in a procedure, whereas try-catch block cannot be used in a function.
We can use transaction in procedure, whereas we cannot use transaction in functions. Types of SQL function: systematic defined, system defined function. These functions are defined by SQL Server for a different purpose. For a different purposes, the function that are defined by the system are known as system defined function. In other words, all the built-in functions supported by the SQL Server are referred to as system defined functions. Usage of the built-in functions saves much development time or query writing time while performing the certain tasks. System-defined function. We have two types of system-defined function in SQL Server: scalar function. A scalar function operate on a single value and return a single value, like lower. Lower is a function that returns the string into lowercase, just like lower.net. We see that a .net is written in uppercase. If we apply select lower or .net in caps, then it will return the .net in a small case or lowercase. Ltrim, you can see that ltrim bracket open single quote space .net single quote and bracket close. If we use the ltrim, select ltrim with the space .net, it will remove the space from the left side. Aggregate function operate on a collection of values and return a single value, just like some maximum function, minimum function. एग्रीगेट फंक्शन पे ऑलरेडी हम वीडियो देख चुके हैं, इसका भी मैं लिंक जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा. यूजर डिफाइंड functions that are created by the user or developed or written in database are generally known as user defined functions. The custom functions help us to simplify the overall database development and making it available for reuse whenever any similar functionality is required. There are the three types of user defined function. Number one is scalar function. The user defined scalar function also returns a single value as a result of action performed by the function. Inline table valued function. The user defined inline table value function returns a table variable as a result of action performed by the function. The value of the table variable should be derived from a single select statement. Multi-statement table value function. The multi-statement table value function can contain multiple statements and contains multiple statements within begin and end. Now theoretical part is complete. Now we are going to move on our practical part. जैसा आप जानते हैं कि पहले से ही मैंने जो है इसमें क्वेरीज में आपके लिए लिख लेता हूँ, एक्सप्लोर कर लेता हूँ. तो यहाँ पर जो है हमने पहले से एक क्वेरी लिखी हुई है. ये फंक्शन किस तरह से क्रिएट होगा: क्रिएट फंक्शन और फंक्शन का नेम fn get emp एम्प्लॉय एंड फादर नेम. बेसिकली मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ और 1 यहाँ पे हम 1 मैंने पहले से इस नाम का फंक्शन बना चुका हूँ, तो मैंने इसलिए 1 कर दिया ताकि आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल में मैं दिखा सकूँ. अब ये जो है दो में पैरामीटर्स हैं एम्प्लॉय नेम, इनकी टाइप मैंने डिफाइन करी, लेंथ डिफाइन कर दिए 50 एंड फादर नेम, इसकी टाइप डिफाइन करी और लेंथ डिफाइन कर दिए. रिटर्न वॉच आर 101. इन दोनों का सम करके मैंने 100 भी ले सकता हूँ, मैं चाहे तो मैं 100 कर दूँ या 101 भी लिख सकता हूँ. एज, फिर हम यहाँ पे एज का कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर बिगिन रिटर्न और सिलेक्ट जो मैंने पैरामीटर में वैल्यू दी, प्लस कॉन्केटिनेट करा स्पेस, फिर इसके बाद मैंने प्लस का साइन लगाया इसको कॉन्केटिनेट करने के लिए, फिर फादर नेम. इट्स मीन दिस, अगर हम ये दो फादर नेम एम्प्लॉय नेम देंगे तो इसको कॉन्केटिनेट करके रिटर्न कर देगा. तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे कि फंक्शन को क्रिएट करते हैं अपने ट्यूटोरियल डेटाबेस के अंदर. आपने देखा कि फंक्शन क्रिएट हो गया. अब इस फंक्शन को मैं
कॉल करूँगा यहाँ पे। अच्छा, फंक्शन जो है ये DBO डॉट के साथ ही, स्कीमा के साथ ही यूज़ होता है। तो हम ये DBO डॉट और फंक्शन के नेम के साथ इसको कॉल करेंगे और हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में मैं देखा, मैंने फंक्शन का नेम कॉल करा, मैंने 2 पैरामीटर की वैल्यू दी। इसका जो रिटर्न होगा वो मैंने एज आ नेम उसको रख दिया, एड्रेस रख दिया फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। ये मेरा टेबल ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है इस टेबल के अंदर। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आपने देखा कि मोहम्मद तारिक और शुएब फादर नेम जो है वो कॉन्केटिनेट हो गया, सना और उनके फादर नेम जो कॉन्केटिनेट हो गया, दानिश रईसुद्दीन ये कॉन्केटिनेट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लूँ तो आपको आसानी हो जाएगी, आई बिलीव। ये हम ओरिजिनल अपना टेबल और फंक्शन दोनों को कॉल करते हैं, तो ये हम इजीली जो है इसको देख सकते हैं कि किस तरह से कॉन्केटिनेट हो गया है। आप देखना किस तरह से फादर नेम कॉन्केटिनेट होगा आ गए ड्यू टू यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। और सेकंड एग्जांपल जो है वो हम फंक्शन बना रहे हैं जो कि बेसिकली टेबल रिटर्न करेगा हमें, टेबल वैल्यूड फंक्शन जो है। अब सबसे पहले हम इसको फंक्शन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट फंक्शन लिखा, उसका नेम लिखा, रिटर्न जो है वो टेबल करेगा। यहाँ पे रिटर्न टाइप हमने डिफाइन कर दिया कि टेबल होगी एज, इसके बाद रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करा हमने, इसके बाद सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। तो अब हम सबसे पहले फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। ये फंक्शन हमारा जो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब इस फंक्शन को जो है मैं वो सिलेक्ट की स्टेटमेंट में कॉल करूँगा, और जब मैंने कॉल करा तो आपने देखा कि एज इट इज़ ये जो टेबल है वो एज इट इज़ हमारे पास रिटर्न हो गया है। तो इस तरह टेबल की फॉर्म में ये हमें रिटर्न कर दिया है इसने हमें फंक्शन में, क्योंकि इसकी टाइप जो है वो रिटर्न टेबल थी। अब तीसरा जो है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू वाला जो हमने अभी पढ़ा है डिफाइंड फंक्शन। अब हम देखते हैं कि उसको हम किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे क्रिएट फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करा है, FN गेट मल्टीपल एम्प्लॉय रिटर्न सेंस। यहाँ पे मैंने टेबल पे उसका नाम दे दिया टेबल का @emp, और इसके बाद टेबल इसकी टाइप लिख दी है। इसके बाद जो है हमने ब्रैकेट ओपन करा। इस टेबल के अंदर जो है मैंने 3 कॉलम रखे, ID और इसकी टाइप है इंटीजर, स्टूडेंट नेम इसकी टाइप है वॉचर, और एड्रेस इसकी टाइप है वॉचर। इसके बाद मैंने एस का कीवर्ड लिखा, फिर बिगिन करा। फिर इसके बाद क्या करा, मैंने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो बनाया है मैंने स्टूडेंट इन्फो से रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट इनटू करके मैंने डाल दी है। इसके बाद मैंने क्या करा कि अपडेट एम्प्लॉय का टेबल सेट एड्रेस को सुल्तानाबाद कर दिया, वेयर ID = 1। ठीक है, इट विल अपडेट ओनली इन एम्प्लॉय टेबल नॉट द ओरिजिनल टेबल। सही है। और यहाँ से जो है हम फिलहाल ये पहले वाला जो इसका टेबल था वो सैलरी अपडेट कर रहा था, अब सैलरी की जगह बेसिकली ये इसने एड्रेस को अपडेट करा है। तो हम ये फंक्शन जो है पहले बनाते हैं सबसे पहले, फिर मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये मेरा जो है वो सक्सेसफुली जो है फंक्शन क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कॉल करके देखूँगा। जैसे सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना पड़ता है, उसके बाद हम उसको कॉल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट रिटर्न करता है। और आपने देखा है कि यहाँ पे सुल्तानाबाद जो है ये अपडेट भी हो गया है, और जो इसमें जो टेबल बना था @emp उसके अंदर ये रिज़ल्ट हमें मिल गया है टेबल फॉर्म के अंदर। तो इसमें आपने जो मल्टी वैल्यू था, तो यानी मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ जो है हमने ये अचीव करा है। उससे पहले वाला जो चीज़ थी वहाँ पे जो है वो एज सच वो मल्टी स्टेटमेंट नहीं था, सिंगल वैल्यू हुई इनलाइन टेबल जो है वो हमें रिटर्न हुआ था। तो इसका डिफरेंस हमने जो है वो
इस तरह से इसको देखा और हम अपने ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स हम इसको फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। बाकी फर्दर जो है इसमें कोई बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं और एसक्यूएल के, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस पर भी मैं अपना ट्यूटोरियल बनाऊँ। बट आज का जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस थे, मुझे उम्मीद है कि आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, आपको पसंद आया होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी आपकी यकीनन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोहम्मद तारिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।